things, so many layers. I think the performances were outstanding. Person who just comes in front of me all the time is Arjun. He's so good in the movie, and it's just such a clear, clean, precise, and brilliantly shot film. Wonderful story, and very exciting, and a lot of wishful thinking in it. But I think people in India would be, very happy to see it. Shruti Hassan's character. It's fabulous. I loved her character. She's done such a brilliant job. She's really done a good job. Thank you so much. Beautiful. Thank you. Morning, Raj bhai. Tell us what you like about the film. I like it. Overall, everything I like about the film. I mean, the way it's shot, the way it's kind of come together, and the performances, and it's very taut, very gripping. Okay, tell us the performance by Arjun Rampal and Shruti Hassan. I liked all of them. Arjun is very good, and so was Irfan, and so were it's a kind of ensemble, and Rishi Kapoor is back. So. When says the promo on the moment you see take you somewhere, it's a gangster story, but it's a raw agent story. Yeah, I mean, I love these kind of stories, and I thoroughly enjoyed myself. Do you think Nikhil Advani is a director done the justice of the film? Of course, otherwise why am I saying all this? Yes. Thank you so much. Thank you. Director है एजेंट विनोद का. I'm sure it's going to be. I'm hoping it's going to be fantastic. Heard great things about it, and I'm sure everyone is right. It's going to be an exciting, thrilling film. Have you seen the promo? What do you like about the promo? I think there's just a very exciting promise. It promises a thriller, action, emotion, things I look for and enjoy in films. Have you seen the promo? Yes. What do you like best in the promo? I think it's exciting. It's an invitation. D-Day says it all. D-Day is about the here and now. It's fantastic. Rishi Kapoor, having the speculation that he's playing a Daud Ibrahim. Tell us about that. I think he's just a terrific actor. I know from the time my father worked with him, Sagar, he's been telling me what a legendary actor he is, and we've seen in the last few years he's just doing more and more fantastic things. So whatever he takes on, it doesn't matter. He does a great job with it. Thanks. Have you seen the film? Yeah, I saw the film. What's the best part of the film? I think it is one of the best relentless thriller that I have seen, spy thriller that I have seen. The performances, the direction, the camera work, it's really top notch. And I think it's a very compelling thriller. Very few films in terms of format, in terms of thriller, are compelling, and D-Day is one of the most compelling thriller. I think the way it has been written, the way it has been directed, the way it has been edited, everything is top notch. I just love the film and the performances of Irfan, of Arjun, of Huma, of Rishi Kapoor Saab. Everybody is top notch. Okay, Rishi Kapoor Saab, there is speculation from the media and people that he's playing Daud Ibrahim. What's your take on that? What's your view on that? Whatever he's playing, I think he has done a brilliant job. He's playing, as the film says, it's a fictional film, and the character that he's playing is of a gold man, and the way he has performed, the way he has brought the character alive is amazing. Okay, everything is talking about the performance by Shruti Hassan and Arjun Rampal. Especially the Shruti, intense character. Tell us about it. I think she has done a fabulous job. Not only her, I think Irfan is great in the film, Arjun is brilliant in the film, Huma is very good in the film. So all of them have done a brilliant job. Thank you. मैं करता हूँ
Hi, how are you? So charge कर दे. हुमा, मूवी के प्रमोशन को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप, कितनी खुश हैं मूवी का? ऑफ कोर्स बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ. अभी भी एक स्क्रीनिंग खत्म हुई है, अभी एक और शुरू हुई है. एंड जितने भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं इंडस्ट्री में से, सब में से चाहे डायरेक्टर्स हों, टेक्नीशियंस हों, राइटर्स हों, एक्टर्स हों, सबको इंडस्ट्री में से एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है. एंड ट्विटर पे भी जितने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, सब पे बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने फिल्म बनाई है. एंड निखिल ने बहुत मेहनत की, सब एक्टर्स ने बहुत मेहनत की. सो ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट द अर्ली रिव्यूज ऑफ द फिल्म आर सो गुड एंड सो पॉजिटिव. अच्छा हुमा, इस मूवी में आपका कैरेक्टर एकदम डिफरेंट है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेरी हर फिल्म में मेरा कैरेक्टर एकदम डिफरेंट होता है. मेरी कोशिश ही ये रहती है कि मैं हर फिल्म में एकदम अलग सा कुछ करूँ. इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम जोया रहमान है. एक्शन करती है लड़की है, एक एजेंट है अंडर कवर. और ये फिल्म बहुत ही क्लोजली देखती है अंडर कवर एजेंट्स की लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी चॉइसेस को. एंड एक मिशन है जिसपे ये 4 लोग हैं टू कैप्चर इंडियाज़ मोस्ट वांटेड मैन, प्लेड बाय ऋषि कपूर. एंड उनके साथ क्या होता है वाइल दे आर ऑन दिस मिशन, ये उसकी कहानी है. अच्छा हुमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आज के सिनेमा में सबसे ज़्यादा अभी के दौर में देखा जाए तो रॉ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जा रहा है. रॉ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जा रहा है. तो क्या अभी हमारी जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ रियलिटी ही दिखाती है लोगों को, या? बट यू नो एक्चुअली आप बहुत सरप्राइजिंग बात बोल रही हैं, बिकॉज कल इनफैक्ट इरफान एंड आई वर चैटिंग एंड हम लोग सोच रहे थे कि अगर जैसे हमारी फिल्म इज अ स्पाई थ्रिलर, इट्स एन एस्पिनाज फिल्म. वी कुडंट थिंक ऑफ एनी अदर फिल्म इन द पास्ट जो एक एस्पिनाज थ्रिलर हो. नॉर्मली फिल्मों में यू नो जब स्पाइस को दिखाते हैं तो बहुत ही जेम्स बॉन्डिश ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही लार्जर देन लाइफ ट्रीटमेंट होता है. बट एक्चुअली रियलिटी में व्हाइल वी वर डूइंग रिसर्च फॉर द फिल्म ऐसा नहीं होता. एजेंट्स कुड बी एनीबडी, यू नो, यू वुड नेवर इवन स्पॉट देम. इनफैक्ट एजेंट्स को रिक्रूट ही किया जाता है ये देखे कि वो एकदम आम लोगों में घुल मिल जाए, एकदम पकड़े ना जाएं. तो जब हम लोग इस फिल्म के रिसर्च के दौरान कुछ एजेंट से मिले तो उन्होंने जब कहानी सुनी उनको बहुत अच्छी लगी. एंड दे सेड इट्स सो वेल रिसर्च. दे आस्क्ड अस कि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली. तो निखिल ने बोला ऑफ कोर्स ऑल द राइटर्स ऑफ द फिल्म एंड गूगल. एंड उन्होंने हमें ये बोला कि नो योर आपकी कास्टिंग एकदम गलत है, हीरोइन बहुत बुरी है, आपके एक्टर्स बहुत लंबे हैं, यू नो दे स्टैंड आउट इन अ क्राउड, सो यू नीड टू कास्ट पीपल दैट लुक नॉर्मल. अच्छा हुमा, आपने कितनी मेहनत की, बिकॉज इसमें आप एक्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा उसके लिए? वेल ऑफ कोर्स हमारे जो एक्शन डायरेक्टर है फिल्म के, टॉम स्टटर्स, ही इज़ अ वेरी बिग हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर. ही इज़ वर्कड ऑन सम बिग मल्टी-मिलियन हॉलीवुड फिल्म्स लाइक द डार्क नाइट सीरीज, इंसेप्शन, टू नेम अ फ्यू. एंड ही वॉज इन इंडिया, तो 2 महीने उनके साथ हम सभी ने एक्शन ट्रेनिंग करी. समथिंग एज स्मॉल एज एक गन को कैसे पकड़ते हैं, गन फायर कैसी होती है, जब आप किसी से लड़ाई करें तो पंच पैरी, यू नो दैट एंटायर थिंग. फॉर मी इट वॉज वेरी न्यू, क्योंकि मैंने कभी एक्शन किया नहीं था और ना ही मुझे कोई एक्शन की ऐसी टेक्निक्स आती थी. तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था, पर बहुत मज़ा आया क्योंकि कुछ नया करने को मिला. एज एन एक्टर आप चाहते हैं आप कुछ नया करें, यू नो, यू डोंट वांट टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. सो माय होल दिस थिंग इज आई वांट टू डू समथिंग न्यू एवरी सिंगल टाइम. अच्छा हुमा, क्या बोलते हैं, आपकी मूवी रिलीज हो गई है परसों, फाइनली आपकी मूवी रिलीज हो रही है, तो क्या कुछ नर्वसनेस है अंदर से, या कुछ? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. नर्वस तो पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज अर्ली रिएक्शंस आर सो गुड. एंड अभी यू नो स्क्रीनिंग अब मैं आपको अभी खत्म हुई एंड एवरीवन इज सो एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक एकदम रॉ, एकदम एजी और एट द सेम टाइम इमोशनल फिल्म है. कहीं ना कहीं आप इन 4 लोगों की ज़िंदगी के साथ, इनके चॉइसेस के साथ जुड़ जाते हैं. इस मिशन में कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी अपना एक अनफुलफिल्ड सपना देखता है. सो आई थिंक यू नो इन एट दैट सेंस एवरी इंडियन, every person who feels that there's something wrong happening around us will really feel for the film. Yeah, thank you. Hey, pakdo. काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कितनी खुश हैं आप? हम सब बहुत खुश हैं. इस फिल्म में सबने बहुत मेहनत से काम किया और हर एक किरदार जो है बहुत अलग है.
एंड सो हाँ, हम सब बहुत खुश हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड. श्रुति, अभी राजकुमार गुप्ता उन्होंने कहा कि बहुत इंटेंस किरदार निभाया है श्रुति ने, शी हैव नेवर डन द प्रीवियसली, और सबसे अच्छा उनको आपका रोल मिला. ओह, दैट्स सो नाइस ऑफ हिम. थैंक यू. आई एम वेरी ऑनर्ड एंड टच्ड. थैंक यू. और उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इतना बांधे रखती है ऑडियंस को, कहीं पे भी आपको लगता नहीं है कि आप 1 मिनट के लिए रुक के जाएं. नहीं, बिल्कुल. इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड फिल्म एंड इट्स वेरी. हमेशा जब मैं एक पिक्चर करती हूँ तो मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करती हूँ, और मुझे लगा इट्स थ्रिलिंग, फास्ट मूविंग, और ऐसा एक पेट्रियाटिक सेंटिमेंट है जो हर ऑडियंस का मेंबर कनेक्ट कर पाए उससे. अब तक का क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है, क्योंकि बहुत लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने फिल्में देख ली हैं. कल्पना लाजमी जी का कहना था द फिल्म इज रियली वेरी गुड. Yes. I'm very happy and it means a lot, and I'm looking forward more to the audience response as well. आपकी दोनों मूवी एक ही दिन पे रिलीज हो रही है, रमैया वास्तवैया और जी. तो क्या इसमें कुछ नर्वसनेस है, कुछ एक्साइटमेंट है? अभी तो काम कर लिया, इसके बाद क्या कर सकते हैं, सब टू गॉड. आपके दोनों किरदार अलग अलग है, बिल्कुल अलग है. इसमें आप बिल्कुल अलग किरदार निभा रही हैं और रमैया वास्तवैया में आप एकदम चुलबुली. तो क्या कुछ थोड़ा सा ऑडियंस के इससे लग रहा है कि आई थिंक एक एक्टर का सपना होता है कि हम एक साल में हो या हमारे करियर में हो, जितना डिफरेंट किरदार निभा सके अलग एक दूसरे से, वो एक अच्छी बात होती है हमारे लिए, एक एस्पिरेशन होता है. तो अगर दोनों फिल्म ऐसे एक ही दिन पे रिलीज़ हो रही हैं तो आई फील वेरी लकी, एंड मैं अपने आपको बहुत ब्लेस समझती हूँ. ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगी, वाले का मन बी अ पार्ट ऑफ? आई थिंक इट्स अ फिल्म एवरीवन विल कनेक्ट टू, एंड इफ़ यू आर एन इंडियन आपको ये फिल्म ज़रूर अच्छा लगेगा. काफ़ी फिल्में बन रही हैं, जिसमें आप डीडे है, मद्रास कहते हैं, जिसमें रॉ को काफ़ी हाईलाइट किया जाता है. तो क्या अभी हमारी इंडियन सिनेमा में रियलिटी का ही टाइम? आई थिंक इट्स अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म, एंड उससे ज़्यादा इट्स अ फिल्म अबाउट पीपल और उनकी कहानियाँ, उनके इमोशंस, एंड लोगों से देश बनता है, लोगों से ये दुनिया बनता है. सो इट्स स्टोरी अबाउट द पीपल. यस. ओके, थैंक यू. पागल हो गई. जो भी फिल्म देख के जा रहे हैं सबका यही कहना है द फिल्म इज रियली वेरी क्रीपी. क्या कहेंगे आप? इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. मैं क्या कहूँगा, मैं धन्यवाद दूंगा. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार आई एम वेरी आई डोंट नो, थोड़ा हिल गया हूँ मैं, थोड़ा शॉक टू कि इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सब जगह से. मतलब बहुत मेहनत तो की है फिर फिल्म बनाते बनाते, रिसर्च करते करते, लिखिए, वेदर राइटिंग था, वेदर शूटिंग था, एक्शन था, जो भी है, परफॉर्मेंसेस. बट आई थिंक दैट हाँ, मैं थोड़ा हिल गया हूँ. आई एम हैप्पी. निखिल, मेरा आपसे क्वेश्चन है ऋषि कपूर जी की. अपने टाइम की इमेज काफ़ी अलग थी, लेकिन इस फिल्म में वो काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, साउथ के एकदम. तो व्हाई आर यू चूजिंग फॉर? आई थिंक ये ऋषि कपूर का ये सेकंड इनिंग्स है. मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, वो कर रहे हैं. उनके हिसाब से द ओनली पर्सन ही इज कम्पीटिंग, उनके कंपटीशन में सिर्फ एक आदमी है, वो रणबीर कपूर, उनके दिमाग में. तो ही वांट्स टू बी, फॉर हिम इट इज़ कि यार मुझे चैलेंजिंग रोल्स दो, मुझे रॉफ लाला प्ले करना है, मुझे दुग्गल प्ले करना है, मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का प्रिंसिपल प्ले करना है, मुझे डीडे में मोस्ट वांटेड मैन इन इंडिया गोल्डमैन का रोल प्ले करना है. तो और एवरी, मतलब एक जैसे आप एक बच्चे को एक खिलौने की दुकान में लेके जाओ ना, तो उसको सब कुछ चाहिए. तो ही इज़ लाइक दैट राइट नाउ. ही इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड, उसको सब कुछ करना है. लेकिन जी कैसे, कितना मुश्किल, कितना आसान रहा, क्योंकि हर किरदार, चाहे वो ऋषि कपूर साहब का हो, चाहे श्रुति हसन का जो प्रोस्टिट्यूट प्ले कर रही है, और साथ में उनका फिजिकल अपीयरेंस भी, कितना वर्कआउट करना पड़ा है. हर एक किरदार काफ़ी अलग नज़र आता है. जी, मतलब बहुत एक्चुअली क्या था, वो सब स्क्रिप्ट में लिखा गया था. तो हमने स्क्रिप्ट पे इतना रिसर्च किया था कि श्रुति हसन को एक स्कार देना था, क्योंकि वो सेक्स वर्कर है, और मैं चाहता था कि इतना खूबसूरत फेस को मैं उसको चेंज कर दूँ, मतलब उसको एकदम बिगाड़ दूँ, ताकि जब आप देखें उसे, आपको लगे कि यार इसके बारे में कुछ स्टोरी है, उसके साथ कुछ हादसा हुआ है, कुछ हुआ है. तो क्योंकि एक थ्रिलर फॉर्मेट में इतना आपके पास टाइम नहीं होता है एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसे लव स्टोरी में हो या रोमांटिक कॉमेडी में हो, कि आप 2-3 सीन्स आप डाल सकते हैं जिसमें आप उनका हिस्ट्री या बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर सकें. तो उसको देख के आपको पता करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है. तो लॉट्स ऑफ तो ऋषि कपूर का कैरेक्टर हो, इरफान का जो क्या फैमिली का जो क्या, सो इरफान की फैमिली के कास्टिंग में बहुत टाइम लगा.
अर्जुन का एक्शन बॉडी सब करने के लिए बहुत टाइम लगा, तो बहुत मेहनत की है इस फिल्म में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बात करें इंडियन सिनेमा की, जी। तो इस वक्त में जहाँ तक देखा जा रहा है तो इंडियन सिनेमा रॉ की तरफ ज़्यादा हाईलाइटेड है। जी। चाहे मद्रास कैफे ले लें या जी, फिर डीडे जी, लें, जी। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या हमारा इंडियन सिनेमा रियलिटी की तरफ नहीं, वो कैसे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंडियन सिनेमा का जो ये दौर है वो बहुत एक्साइटिंग दौर है। हर फिल्म मेकर जो है, तिग्मांशु को ले लीजिए, सुजॉय घोष को ले लीजिए, आप सुजीत सरकार को ले लीजिए, गौरी शिंदे, जो अनुराग कश्यप को ले लीजिए, करण जौहर को ले लीजिए, करण जौहर जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज में इतना डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ उन्होंने टैकल किया, तो एक बहुत ही कमाल के दौर के थ्रू वी आर ट्रैवलिंग। और इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद ओनली द रॉ, इट हैज़ गॉट टू डू विद द फैक्ट कि ऑडियंसेस को आज अगर आप एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग सिनेमा दे दीजिए, वो देंगे, दे विल एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, जितना अलग सब्जेक्ट हो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस एट दिस पॉइंट, क्योंकि मैंने इसके पहले एनिमेशन फिल्म की थी, वो भी एक्सेप्टेड की, द ऑडियंसेस एक्सेप्टेड दैट, एंड नाउ दे, आई होप दैट दे एक्सेप्ट D-Day व्हेन इट रिलीजेस डे आफ्टर टुमारो। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री? यार अभी तक what is the best compliment I've got from the industry is that this is the best film I've ever made. Just now I was talking on the phone and the person told me कि उन्होंने कहा कि पिछले 3 पिक्चर में आपने पिक्चर बनाई क्योंकि आपको लग रहा था कि ये ऑडियंसेस को देखनी है, आपने पहली बार आपने एक फिल्म बनाई है जो ऑडियंसेस देखेगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से? मैं सिर्फ कहूँगा कि नहीं, मैं सिर्फ कहूँगा कि हमने बहुत मेहनत की है। 19 जुलाई फ्राइडे, it's a very big day for us. Please come and watch the film. You will not be disappointed. If you are an Indian, you should watch this film. You'll be very proud. थैंक यू सो मच। चल बैकअप करो, बैकअप करो। हरिओम बाय बाय। चलो हो गया रे। इतनी अच्छी है कि आप सीट छोड़ के जा नहीं सकते। हाउ इज द फीलिंग ऑल टुगेदर? यार बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वाकई में निखिल ने जो फिल्म बनाई है उसमें ऐसी फिल्म कभी अटेम्प्ट नहीं हुई है हिंदुस्तान में। आई थिंक ये रीच आउट करती है हर हिंदुस्तानी का जो सपना है कि काश हम ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ में देख ले, लेकिन ये अभी आपको पर्दे पे देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है इन द एंड ऑफ द फिल्म। अर्जुन, आपके किरदार की अगर बात करी जाए, आपके किरदार को भी लोग पसंद कर रहे हैं जी। अलॉन्ग विद निखिल, उनका स्कार वगैरह जिस तरह का लोग हाँ। आपको दिया है जी। उसके अलावा कल्पना लाजमी साइड शी लाइक द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन रामपाल एंड श्रुति। थैंक यू कल्पना। ओके, उन लोगों ने मुझे रिएक्शंस दिए थे अंदर, मैं उनसे मिल चुका था। दे ऑल लव द परफॉर्मेंस, दे लव्ड ऑल द कैरेक्टर्स, और उनका तो बहुत वो क्या है कि ऐसी फिल्में आई थिंक दर्शक एक्सपेक्ट नहीं करती कि ये कुछ इमोशनल एंगल भी आने वाला है, और जिस तरीके से निखिल ब्रिंग्स इट इन, तो स्पेशली लेडीज़ ऑडियंस जो बोलती है यार ये एक्शन फिल्म मैं देखने जा रही हूँ, मेरी टाइप की फिल्म नहीं है, मैं उनसे यही कहूँगा कि सिर्फ एक्शन नहीं है फिल्म में, ये कहानी है, ह्यूमन कहानी है लोगों की। आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल कनेक्ट टू। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो कैरेक्टर के साथ, और अगर आपको लगता है कि यार इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, यार तू भाग गया, इस प्रकार के जो रिएक्शंस मिलते हैं, इस प्रकार की जो एनर्जी बढ़ती है थिएटर के अंदर, तो आई थिंक दैट्स गुड। अर्जुन, आप भी काफी चूजी हो गए, चाहे राजनीति की बात करी जाए, चाहे D-Day की बात करी जाए, आप भी काफी चुनिंदा, बहुत सोच समझ के फिल्में साइन कर रहे हैं, इसका नतीजा है D-Day? आई थिंक सोच समझ कर ही पिक्चरें साइन करनी चाहिए यार। अगर बिना सोचे करे पिक्चर साइन करे तो दर्शक डिसअपॉइंट हो जाते हैं, खुद लगता है कि आज मैंने चीटिंग कर दी कहीं ना कहीं, क्योंकि फिल्म अगर बनानी है, ये मेरे जाने के बाद भी ये फिल्म रहेगी यहाँ पर, और तो यही चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग मेरी फिल्मों को पसंद करें। आई थिंक पीपल जस्ट से कि यार किसी नो विंस प्लेड अ रॉ एजेंट इतना रियल, इतना ग्रिटी, वो सोच रहे हैं कि वो कंपेयर कर रहे हैं टू दैट बॉर्न अल्टीमेटम, जेसन बॉर्न टाइप ऑफ कैरेक्टर, तो उसके साथ कंपैरिजन हो रही है, तो यार अच्छा लग रहा है यार। अपनी शूटिंग के दौरान जैसे उन्होंने कहा कि आप रियल इंडियंस से भी मिले, जी। तो फिर क्या मतलब कितना सीख लिया उनसे?
अरे बहुत कुछ सीखा है। आई मीन 2-3 महीने तक हमने एजेंट से मिले, ट्रेनिंग भी की, रिसर्च भी किया। सिंपल चीज़ें जैसे कि एजेंट्स बताते हैं आपको कि अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो ऐसे आप मुड़ के नहीं देखेंगे कोई मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं। आप ऐसी कोई सरफेस पे जाएंगे जहाँ कुछ रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा तो आप पीछे देख सकते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और अगर गॉगल्स हैं या कुछ तो गॉगल्स के थ्रू देख सकते हैं, या आप चम्मच उठाकर देख सकते हैं और रिफ्लेक्शन में, क्योंकि सरप्राइज मेन चीज़ होती है इन एन अटैक। तो ये सरप्राइज की जो बात थी, वी वांटेड टू इनकॉर्पोरेट इट इन द स्क्रिप्ट। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। अभी देखिए ये 3 वीकेंड्स, जो लास्ट 3 वीकेंड में लुटेरा जैसी फिल्म आई है, बोल रहे हैं कि अच्छी रोमांटिक फिल्म है, मैंने देखी नहीं है लेकिन रिव्यूज़ पढ़े हैं उसके, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले उसे, और बहुत ही प्यारी सी बोल रहे हैं रोमांटिक फिल्म बनी है, पीरियड में बनी है। तो वैसी भी फिल्म बनती है। फिर एक स्पॉट फिल्म बनी है भाग मिल्खा भाग में, और ये अभी एक बहुत ही अलग किस्म की जॉनर की, जो थ्रिलर जॉनर अलग नहीं है लेकिन जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट दिया गया है इस फिल्म को और जिस तरीके से इसकी कहानी, तो आई थिंक कहानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको कुछ कहना है, डायरेक्टर को कुछ कहना है, तो वो एक अच्छी फिल्म बना सकता है। ओके, आपने जो शुरुआत की है रॉ एजेंट पे फिल्म बनने की, मद्रास कैफे आ रही है और भी कई फिल्में पाइपलाइन में, इस तरीके से कुछ अब रॉ एजेंट को पकड़ लिया यार कोई तो देखिए, रॉ एजेंट्स के बारे में ये मैं यही कह सकता हूँ कि वो जब कोई सीक्रेट मिशन में जाते हैं और कामयाब होते हैं तो उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता सबके सामने, या फिर ना उनका फोटो ना न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आता है, ना उन्हें कुछ मेडल दिया जा रहा है सबके सामने, उनको हीरोज़ नहीं माना जाता। तो एक्चुअली वो हीरोज़ हैं क्योंकि वो जाके ऐसे काम करते हैं। और अगर उनका मिशन फेल हो जाता है तो सब हाथ धो देते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं, हमारे देश से नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट टू देम, और इतना वो लोग मेहनत करते हैं कि हम सब सेफ रहें। तो उस हिसाब से आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। जो मैंने पूछा था रॉ एजेंट से कि आप लोग ये काम क्यों करते हैं, थैंकलेस जॉब है, बिल्कुल थैंकलेस जॉब है। इतने ऐसा भी नहीं है कि करोड़ों कमा रहे हो या कुछ हो रहा है, ऐसी बात तो है ही नहीं। तो जैसे वो एडवेंचर, वो एड्रेनलिन के लिए और देश के लिए करते हैं। तो ये ऐसे लोग को पर्दे पे लाना, उनको पोर्ट्रे करना बड़ी इज्जत की बात है और बड़ी बात है। वो तो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है ये सारे क्रिटिक को तो छोड़ जाएगी पीछे उन्होंने तो बहुत अच्छी लगी उनको फिल्म। वो सोचती है कि ये शायद मेरी बेस्ट फिल्म है आज की डेट में, तो फ्राइडे को पता चलेगा। Last message, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of D-Day? What they'll be getting? देखिए, this is a film, I think it's a dream of 1 billion people. हम सब का एक ख्वाहिश है, सपना है कि ऐसा कुछ हमें ब्रेकिंग न्यूज़ में देखने को मिल जाए। लेकिन जब तक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में देखने को नहीं मिलता, आइए और बड़े पर्दे पर देखिएगा कि हम किस तरीके से इस मिशन को में कामयाब होते हैं या नहीं होते। Thank you so much. Thank you so much. All the best. Tomorrow